اپنے انٹرو میں کہا تھا ہم بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کی اور یاد دہانی کے لیے ایک کوئک ریویو لے لیتے ہیں کہ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جون کے مہینے میں امریکہ نے ایران پر ایک جو تھا وہ اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، جس کو مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا تھا، اور اس دوران امریکہ نے ایران کی کئی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اس تمام تر اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ٹینشن کو، اس کشیدگی کو سفارتی سطح پر جو ہے وہ حل کر لیا جائے، مگر اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی ہے تو پھر امریکہ جو ایران پر حملہ کرے گا، اس کے خطے پہ کیا اثرات ہوں گے، نہ صرف خطے پہ ہوں گے بلکہ جس طرح کی قوم ہے ایرانی قوم کا، جس طرح کا نیچر ہے، وہ خطے سے کہیں آگے تک جائیں گے، اور ایران گو کہ 16ویں نمبر پر آتا ہے اپنی فوجی قوت میں، اور جو امریکہ ہے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے، لیکن جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ اس تمام تر موقع سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں زبیر حسین صاحب نے۔ زبیر صاحب، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اب سب کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ اگر جو امریکہ ہے وہ حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر، اور اس ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں تقریباً 50 سے 40 کے درمیان جو ہے وہ ایئر بیسز امریکہ کی موجود ہیں، تو پھر ایران کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اس کا جواب دے پائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ ایران کی بات کریں تو ایران کے ساتھ جنگ کرنا امریکہ کے لیے اس طرح مشکل ہو سکتا ہے کہ ایران کی اگر جغرافیائی لوکیشن کی بات کریں تو ایران کے گرد و نواح میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلند و بالا پہاڑ کا سلسلہ ہے، جس میں الپس پہاڑ ہے، اور ان پہاڑوں کو عبور کرنا زمینی فوج کے لیے ناممکن ہے، اور تہران تک پہنچنا ممکن نہیں۔ پھر اگر بات کریں اگر جغرافیہ کی، تو ایران میں جو ہے وہ وسط ایران کے اندر کچھ ایسے نمکین صحرا ہیں جس میں اگر ٹینک اور ہیوی جنگی مشینری کی بات کریں تو وہاں پر اس کی نقل و حمل مشکل ہو جائے گی۔ پھر اگر آپ بات کریں تو ایران کے پہاڑوں کے اندر سرنگوں کے اندر جو ہے وہ ڈرونز کا اور میزائلوں کا ایسا نیٹ ورک موجود ہے کہ جسے فضائی حملے سے ختم کرنا یا اس کو جو نیست و نابود کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو اگر جغرافیائی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو ایران اس طریقے سے مضبوط ہے کہ ایران کے اگر اوپر حملہ ہوتا ہے فضائی طور پہ تو شاید ایران اس کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن زمینی طور پر ایران کو کنٹرول کرنا اور تہران تک پہنچنا، کسی بھی ملک کے لیے بڑی تعداد میں فوج بھیجنا ناممکن سی بات ہے۔ پھر اگر آپ بات کریں ایران کے حامی ملکوں کی، تو ایران کے ساتھ حوثی باغی جو ہے وہ بھی پروکسی وار کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لبنان کی اگر بات کریں تو لبنان میں جو حمایتی گروپ ہے ایران کا وہ بھی حملہ آور ہوگا۔ عراق اور شام کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر پروکسی وار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ امریکہ کے لیے قابو کرنا مشکل ہوگا۔ پھر اگر بات کریں ایران کے سستے ہتھیاروں کی، ہم نے حال ہی میں دیکھا اور ایران نے ثابت کیا کہ ایران کے پاس سستے ڈرون جو چند ہزار ڈالر کے ہیں، جس میں خاص طور پہ شاید 136 کی بات کریں تو وہ امریکہ کے ایکسپینسو جو قیمتی دفاعی نظام ہے پیٹریاٹ، اس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، اسے مصروف کر سکتا ہے، یا پھر اس کو مکمل طور پہ ختم کر سکتا ہے۔ ایران کے پاس اتنے ہزار میزائل موجود ہیں کہ وہ اگر ہمہ وقت بیری بیڑوں کے اوپر اس کا حملہ ہو تو بیری بیڑوں کو نہ صرف وہ مصروف کر سکتا ہے بلکہ ان کو ڈبو بھی سکتا ہے۔ تو ایران کی جو مجموعی صورتحال ہے اس میں اگر آپ ایران کی زمینی فوج کی بات کریں تو باقاعدہ فوج کے علاوہ ایران کے پاس پاسدار انقلاب بھی موجود ہے۔ پاسدار انقلاب ایک ایسی نظریاتی فوج ہے کہ جو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنا مشن جاری رکھے گی۔ وہ اس قسم کی محب وطن فوج ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی جنگ کے اندر امریکہ کو لے جا سکتا ہے۔ ایران کی جو باقاعدہ فوج کی اگر بات کریں تو ان کی ٹریننگ موزائک ڈیفنس کے طور پہ کی گئی ہے،
यानी कि ईरान के जो फौजी हैं, अगर उनका तेहरान से मरकजी राब्ता ख़त्म भी हो जाए तो उनके जो मकामी कमांडर हैं, उनमें इतनी सलाहियत है कि वो अपने तौर पर जंग को जारी रख सकते हैं। तो अगर आप बात करें कि ईरान की शायद फ़ज़ाई ताकत इतनी नहीं कि वो अमेरिका के मुकाबले में आ सके, लेकिन ईरान की जो ज़मीनी फ़ौज है और उस फ़ौज के जो हौसले हैं, वो इतने बुलंद हैं कि ये जंग मशरिक़ वस्ता को एक जो है ना ऐसी आप समझें कि कुएं में धकेलेगी कि जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक जो इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान के लिए भी इसके असरात बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। 900 किलोमीटर की हमारे पास एक बॉर्डर है ईरान के साथ, जिसके बाद हमारे पास हो सकता है कि पनाह गजीनों का मामला खड़ा हो जाए, और इसके अलावा दहशतगर्दी के भी बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। ईरान इस वक्त जिस सूरत हाल में है वो गैर यकीनी सूरत हाल है, यानी ईरान ने पहले ही अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो आपके हमला करने से कबल हम हमला कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आएगा, और इस वक्त मशरिक़ वस्ता किसी भी बड़ी जंग को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। ईरान के पास ना सिर्फ जंगी बल्कि माशी तौर पर भी दुनिया को मफलूज करने का हथियार मौजूद है। दुनिया का 20% जो तेल है वो ईरान से होकर गुजरता है। अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो पूरी दुनिया पर उसके असरात होंगे, और ट्रंप जो अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत जाने जाते हैं, वो दुनिया के अंदर गैर मकबूल लीडर के तौर पर सामने आएंगे। जी। अच्छा, अब इसमें आपने कहा कि गैर मकबूल लीडर के सामने आएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हम एक सिफारती सतह पर जो है हम कोशिशें कर रहे हैं कि जंग ना हो, कि हमने माजी में भी देखा कि ट्रंप के इस तरह के बयान आए, और तरफ जो है वो आप जिसे कहते हैं वो एक आपने जंगी बेड़ा जो है वो लाके ईरान के करीब खड़ा कर दिया कि किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। तो ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? देखिए, ट्रंप ने हमेशा से जो है वो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई है। उनकी पहली कोशिश ये होती है कि प्रेशर कायम किया जाए, और इसी प्रेशर के तहत उन्होंने वेनेजुएला के सदर के साथ जो किया उसने दुनिया को देखा। फिर यूरोपीय यूनियन पर, ग्रीनलैंड के मामले पर आपने देखा कि उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाई, लेकिन चूंकि यूरोपीय यूनियन एक मजबूत इत्तेहाद था तो ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। तो अगर बेरी बेड़ा इस वक्त अगर मौजूद है खलीज में, तो उसका भी ये सिर्फ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का शाखसाना है। ट्रंप कभी नहीं चाहेगा कि जंग के अंदर पहला वार जो है वो अमेरिका की तरफ से कुछ इस तरीके का हो कि पूरी दुनिया अमेरिका को या ट्रंप को जो है वो गैर मकबूल लीडर के तौर पे माने। ये सिर्फ ईरान को टेबल टॉक के जरिए, किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस के जरिए, किसी ऐसे मफाहमत की पॉलिसी के जरिए टेबल टॉक पे लाना चाहते हैं, ताकि ईरान जो है वो इनकी एटमी पॉलिसी है उसके ऊपर भी हामी भरे, और दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेड मुआहदात हैं या तेल के हवाले से मसाइल हैं उसके लिए भी ईरान जो है वो अपना ताउन बरकरार रखे और ताउन देने के लिए आमादा हो जाए। तो ये जितने भी इस वक्त मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी है वो सिर्फ इसलिए है कि ईरान को एक टेबल पे लाकर किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जाएं। जी। अच्छा, मुज़ाकरात किए जाएं, प्रेशर इस वजह से डेवलप किया जा रहा है कि ईरान से मुज़ाकरात किए जाएं, मगर अमेरिका मुज़ाकरात करे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, बिकॉज ईरान को जितना हम जानते हैं, ईरान एक ऐसी कौम है कि जो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहती है। वो ये नहीं देखती कि उसके सामने जो जिससे उससे लड़ाई, जो उस पे हमला कर रहा है, उसकी कितनी ताकत है या नहीं है। जब इजराइल के मामले में भी हमने देखा कि इसी तरह का ईरान भरपूर कुव्वत जो है वो हमला करने की सलाहियत रखता हो ना रखता हो, मगर कुव्वत जो है उसका वो जिसे कहते हैं इरादा, वो हमेशा उसका पुख्ता होता है और वो कभी भूलता नहीं अपने दुश्मनों को। अब तक ओवरऑल हिस्ट्री यही कहती है। तो अब इस सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि अगर हमला होता है तो ईरान किस तरीके से इसको हैंडल कर पाएगा, और क्या कोई ऐसे ममालिक भी हैं जो इसको रुकवाने के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं?
देखिए, सालसी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इस खित्ते में सालसी का किरदार अदा करने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर के साथ एक मुल्क गैर मुस्तहकम हो और वहाँ पर जंग मुसल्लत हो, क्योंकि उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर आएँगे। पाकिस्तान इस वक़्त एक ब्रिज का, एक मीडियम का काम अदा कर रहा है ताकि किसी तरीके से सिफारती तौर पर इस मामले का खात्मा किया जाए। दूसरी जानिब मैं आपका यहाँ पर जो है वो ध्यान इराक और अफ़गानिस्तान की जंग पर लेना चाहूँगा, जहाँ पर अमेरिका ने ज़ाहिरी तौर पे तो जंग जीत ली, लेकिन उस खित्ते में कंट्रोल इसका नामुमकिन रहा। यानी कि किसी मुल्क पे कब्जा करके और वहाँ पर हुकूमत करना, खास तौर पर इस खित्ते में जहाँ पर इस वक्त ईरान मौजूद है, अमेरिका की ना ही पॉलिसी है और ना ही अमेरिका की इतनी सख्त है। फिर अगर आप बात करें तो ईरान के साथ उसके हिमायती ना सिर्फ मुल्क हैं, बल्कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर इसके ईरान के हिमायती ग्रुप मौजूद हैं, जो प्रॉक्सी वार के जरिए एक ऐसी जंग का आगाज करेंगे कि जिसको कंट्रोल करना अमेरिका के हाथ में नहीं होगा। जी। पहले जब जून में जब हमला हुआ था, मैं आपको जिसकी अभी हवाला दे रही थी, जिसको मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था, और अमेरिका ने ये दावा किया था कि हमने जो है वो इनकी जौहरी तंजीबात को नुकसान पहुंचाया है बड़ी हद तक, बल्कि कहा गया था कहीं कहीं कि उसको खत्म भी कर दिया गया है या अबाउट टू उसको खत्म होने के बिल्कुल करीब थे। बट अब ईरान ने फिर उसके ऊपर दावा किया था कि पता नहीं कितना किलो कितना 100 किलो जो है वो यूरेनियम जो है वो अभी भी कहीं पर ऐसी जगह पे मौजूद है, जैसे अभी आपने ऊंचे पहाड़ों का जिक्र किया। अगर वो मौजूद है जी। वहां पर और अगर अमेरिका जो है वो नाकाम रहा इन सारी चीजों में, तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका को एग्जैक्टली पता है कि उसने वो मवाद कहाँ छुपा रखा है, कि पहाड़ों के नीचे छुपा रखा है ईरान ने। देखिए, यूरेनियम की आज़ूदगी और यूरेनियम के हवाले से जो गुज़िश्ता बयान आया और अमेरिका ने ये दावा किया कि उन्होंने बड़ी ज़र्ब लगाई है ईरान पर, तो वो इनकी खाम ख़याली है। क्योंकि ईरान ने ना सिर्फ कुछ ऐसे मकामात, ख़ास तौर पे अगर पहाड़ों की बात करें तो उन्होंने शहर के शहर आबाद किए हुए हैं, जहाँ पर ना सिर्फ ड्रोन का सिलसिला है, बल्कि इनके छोटे मिसाइलों की दुनिया आबाद है, जिसको रीच करना और एटमी इनके जो असासे हैं उनको ख़त्म करना उन पहाड़ों के अंदर एक नामुमकिन सी बात है। कोई भी फ़ज़ाई हमला हो वो इस तरीके से मार नहीं कर सकता कि जो पहाड़ों की गहराई में जाकर इन तमाम तर असासों का एक ही दफा में खात्मा कर सके। तो ईरान का अगर आप ईरान की तारीख भी देखें तो यही रही है कि ईरान ने इतने अरसे में दुनिया भर की पाबंदियां होने के बावजूद अपने आप को इतना मुस्तहकम किया कि सस्ते मिसाइल बनाए, सस्ते ड्रोन बनाए, और हमने बल्कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि इसराइल के साथ जब जंग का आगाज हुआ तो किस तरीके से ईरान ने हजारों मिसाइल जो है वो हवाओं में लहराए और ये साबित किया कि ईरान जो है अगर फजाही तौर पर इतना मजबूत नहीं, लेकिन ईरान के पास कुछ ऐसे सस्ते हथियार हैं कि जो किसी भी बड़े दिफाई निज़ाम को नेस्तो नाबूद करने या उसको मसरूफ करने के लिए काफ़ी है। तो ईरान की अगर आप एटमी ताकत की बात करें तो उसको ना ही ख़त्म किया गया है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है उसके बुलंद और बाला पहाड़ों की वजह से। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बस जाते जाते बस बहुत टाइम है हमारे पास कि अगर ये हमला हो जाता है तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। एक तरफ उसका हमसाया मुल्क है ईरान, जिसके साथ उसका बॉर्डर जो है वो मिलता है, और एक तरफ अमेरिका है जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। डे बाय डे हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी इस बात पे कई दफा जो है इसका जिक्र कर चुके हैं। अभी हमने आज भी देखा, फिर फील्ड मार्शल भी जो है वो हमें नजर आए कई मौकों पर, अहम मौकों पर। और फिर वो जो गजा में जो पीस हुआ उसमें भी हम पाकिस्तान जिस तरह से अपनी फौजें भेज रहा है। आपको पाकिस्तान का स्टैंड क्या नजर आता है अगर ये हमला हो जाता है तो? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन में है और दोनों तरफ मफाहमत की पॉलिसी के तहत काम कर रहा है। अगर जंग मुसल्लत होती
है तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा धचका होगा वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का खात्मा या उसका मुश्किल में आना। फिर दूसरी जानिब बिल्कुल। 900 किलोमीटर की जो हमारी बॉर्डर है उसके अगर आप बात करें तो उसको कंट्रोल करना और वहां से जो पनागजीन यहाँ पर आएंगे उनको इंसानी बुनियादों पर अपने पास रखना जो है वो पाकिस्तान की अवलीन तरजीह होगी, क्योंकि ईरान के साथ हमारे ना सिर्फ बरादराना ताल्लुक है बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा हर महाज पर जो है वो ईरान के मामले को अफाम व तफहीम और बड़े अच्छे अंदाज में, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की कौंसल हो, यूएन कौंसल, या फिर अमेरिका के कोई किसी बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिसमें ईरान को बरादराना दोस्त मुल्क और एक ऐसा मुस्तहकिम पार्टनर के तौर पे साबित किया है कि इस खित्ते में अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो वो ना सिर्फ ईरान बल्कि इसके मुतल्लिका जो भी इलाका है या ऐसे ममालिक जो इसके इर्द गिर्द हैं उन सबको जो है वो लपेट में लेके इकोनॉमी, ना सिर्फ मईशत की बात करें कि मईशत को नुकसान पहुंचेगा बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि जो कई सौ सालों तक जो है वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस खित्ते को। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक न्यूट्रल ब्रिज है और पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश ये है कि ये जंग ना हो और किसी तरीके से एक मुज़ाकरात के लिए किसी टेबल पर इन दोनों ममालिक को इकट्ठा किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर हुसैन साहब आपका कि आपने इतनी तफसीलन रोशनी डाली। ये जो हालिया कशीदगी चल रही है, जंग चाहे किसी के भी दरमियान हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जो अवाम है और खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर नहीं होती है। पहले ही पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी का क्राइसिस है, इकोनॉमी क्राइसिस जो है वो है, और ऐसे सूरत हाल में जब जंग होती है तो फिर हम ये देखते हैं कि कारोबार के सरमायाकारी के मौके जो हैं वो बिल्कुल खत्म होने के बराबर होते हैं। पहले ही हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है, इसकी वजह से जो ट्रेड रूट बंद है उसकी वजह से दोनों एतराफ में दोनों ममालिक को खासा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।